Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. Today we are going to talk about scattering and total internal reflection. So basically हम लोग देखेंगे कि ये जो फिनोमिना है स्कैटरिंग वो कैसे होता है और इस फिनोमिना की वजह से जो चीज़ें हमें अपीयर होती हैं वो कैसे होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कि जो स्काई है वो तुम्हें हमेशा ब्लू नज़र आता है. सो बेसिकली ये जो फिनोमिना है दैट मीन जो तुम्हें ऑब्जर्व होता है, तुम्हें ब्लू कलर स्काई का ऑब्जर्व होता है, वो किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग की वजह से. कैसे होता है? अभी तक आपको ये फिनोमिना नहीं पता था, राइट? अभी तक आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व होती थी. आपको रेड अपीयरेंस होता है जब सनराइज होता है, सनसेट होता है. ब्लू आपको कलर का स्काई दिखता है, आपको क्लाउड्स वाइट दिखाई देते हैं, तो आपको ये नज़र तो आते हैं, बट यू डोंट नो द फिनोमिना कि ये किस वजह से ऐसा होता है, राइट? उसके बाद जो अदर चीज़ें हैं जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन, वो कैसे होता है, किसकी हेल्प से होता है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड नो अबाउट. तुम्हें ऑब्जर्व तो हो गया, तुम्हें रेनबो दिखाई देता है, तुम्हें ब्लू कलर ऑफ द स्काई दिखाई देता है, तुम्हें सनसेट दिखाई देता है रेड कलर का. सो यू कैन सी दीज थिंग, यू कैन ऑब्जर्व दी थिंग, बट वॉट आर द फिनोमिनाज बिहाइंड दैट ऑब्जर्वेशन और कैसे वो वर्क करते हैं, क्या चीज़ होती है, कब कब ये फिनोमिना हमें स्पेसिफिकली ये कलर शो करते हैं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस लेक्चर टुडे इटसेल्फ. ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं और ये जो लेक्चर्स वीडियो सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं, दीज आर फॉर दी स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज दी ओलंपियाड लेवल, सो यू कैन डेफिनेटली स्टडी फॉर देम, राइट? एंड you should make sure that you do study for these classes, right? You can definitely do the school examination questions and their studies, right, along with the Olympiad, so you should fight for that too, right? If you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You can write the code DTP010 in the search box of the Telegram app so that you can get all the DPPs and study material, and you can join that channel of the class 10. Then you can access all the things जो कि वहाँ पे available हैं. Now see, this is the team which is putting so much effort so that we can make some quality lectures for you all, and we help you in clearing your examinations or cracking the goals you have set for yourself, right? That is the main goal for us, so we are making sure that you do that. What you need to do is you need to share these video lectures to everybody of your friends, relatives, family members. You can do that, right? एंड आप इनको इनसे स्टडी भी करना है ताकि आपके गोल्स तो क्लियर हो ही हो, साथ में आपके फ्रेंड्स के जो इन वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे उनके भी गोल्स क्लियर हों. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू. ठीक है, in accordance to that we have prepared some packages for you all. So if you want to access those packages, you can go on our website www.talkingtextbooks.in. If you go on our website, then you are going to get to the two type of packages over there, the full package and the test series. So full package is for the student जो कि पूरा throughout the year जो है study करते हैं and they do step by step studying, right? The consistent studying, that is for the full package. अगर आप join करना चाहते हैं then you can do that. What you will be getting is you will be getting the comprehensive study material along with the you can say video classes, जो live classes हम लोग देते हैं वो, and then you will be getting the homework submission feature. You can see the testing feature जिसके testing के अंदर you will be going to get bi-weekly quizzes and periodic test papers. So you are going to get these much things in the full package, and if we talk about the test series, then you are going to get the periodic test papers, bi-weekly quizzes and live classes. ठीक है, तो आपको ये टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हो जाता है. इफ़ यू वांट टू बाय देम और इफ़ यू वांट टू जॉइन देम, देन यू कैन यूज माय कोड CYLIVE to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. So you can do that, so you can access all the things which we are providing you and helping you in your journey so that you can access all the dreams of yours. ठीक है, आप उनको जो है complete कर सके, आप उनको true बना सके. That is the main thing. So promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. That is the thing you need to do because अब हम बहुत ही ज़्यादा course completion की तरफ आ चुके हैं, right? So you need to revise all the things we have read till now. ठीक है, that is the main thing. So you need to start revising. Now see, हम लोग जो स्कैटरिंग देख रहे हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ये हमारे दो मेन टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे. अलॉन्ग विद दैट हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. तो ये जो कुछ फिनोमिनास हैं जो हमें ऑलरेडी ऑब्जर्व होते हैं, बट ये फिनोमिना क्यों होते हैं आज हम उनको रीजन डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स कम अप टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि भाई लाइट को हम क्या कर रहे हैं, बिखेर दे रहे हैं. ठीक है, लाइट स्कैटर कर दे रहे हैं. वो जिस डायरेक्शन से आ रही थी
उसके बजाय हर डायरेक्शन में उसको क्या कर देना है, फैला देना है, उसको स्कैटर कर देना है. दिस इज कॉल्ड द स्कैटरिंग. So whenever the particles present in the air or present anywhere, if some particles do that, so that means what they are doing? They are doing scattering of the light. उन पर लाइट फॉल होती है उन पार्टिकल्स पे, और वो पार्टिकल क्या करते हैं, सभी डायरेक्शन में उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है, डिस्पर्स कर देते हैं. So at that time you are going to say that this phenomena is known as the scattering of light. So देखिए, when light falls on tiny particles, then diffused reflection takes place and light spreads in all possible direction. ठीक है, वहाँ पे diffused reflection होता है. diffused reflection का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे तुम्हें इमेज नहीं नजर आएगी, बट वो ऑब्जेक्ट नजर आएगी. ठीक है, ये चीज तुम लोगों ने ऑब्जर्व की होगी कि जब कभी भी किसी भी एक छोटे से पॉइंट से, ठीक है, जब कभी भी लाइट एंटर करती है घर में या किसी बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में लाइट एंटर करती है छोटे से होल से या फिर कहीं क्रैक से, तो क्या होता है, तुम्हें विजिबल हो जाता है पाथ. ठीक है, तो ये जो पाथ विजिबल हो रहा है, पार्टिकल्स जो तुम्हें घूमते हुए डस्ट के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, वो क्यों नजर आ रहे हैं, बिकॉज दे आर डूइंग व्हाट, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग दैट लाइट अप टू योर आईज, तभी तो तुम उस पार्टिकल को देख पा रहे हो. सो डस्ट पार्टिकल आपको नजर आने लगते हैं. द रीजन इज द स्कैटरिंग ओनली. ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. जब कभी भी पार्टिकल जिनके ऊपर लाइट फॉल हो रही होती है, वो लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में जितना पॉसिबल हो सके उन सभी अलग अलग डायरेक्शंस में उसको स्कैटर कर देते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं. दिस इज नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इन दैट केस जब ये स्कैटरिंग होता है तो या तो वो आपको पार्टिकल विजिबल हो जाता है या फिर आपको लाइट का पाथ नजर आ जाता है, जैसे कि जंगल में होता है. ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू हाउ. नाउ सी, ये जो पॉइंट है, लेट इट बी अ पार्टिकल. ठीक है, छोटा सा पार्टिकल है. इस पार्टिकल के ऊपर क्या हो रहा है, लाइट आ रही है. दिस इज द एरो विच इज शोइंग कि भाई लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है, इस पार्टिकल के ऊपर जा रही है. ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे ही इसके ऊपर लाइट फॉल होती है, ये पार्टिकल सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में लाइट को स्प्रेड आउट कर देता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये पार्टिकल भी नजर आ जाता है और जिसकी वजह से हमें लाइट का पाथ भी नजर आ जाता है कि भाई लाइट जा कहाँ रही है. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग. देखो, अब मैं तुम्हें इसकी पीछे की बात बताती हूँ, मतलब होता तो ये है फिनोमेना, बट उसके बिहाइंड में क्या चल रहा है. सो देखिए, स्मॉल पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट. ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं. बिकॉज वी ऑल नो कि भाई जो सनलाइट है वो 7 कलर्स की बनी हुई होती है. ठीक है, और वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल ये ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं. ठीक है, अब देखिए, when size of the particle increases, जैसे जैसे पार्टिकल बड़े होते हैं या फिर बड़े साइज के पार्टिकल्स अगर उन पर लाइट गिराई जाए तो क्या होते हैं, लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ ऑल्सो स्कैटर. तब क्या होता है, ज्यादा बड़ी वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो क्या हो सकती है, स्कैटर हो सकती है. whenever the size of the particles increases. ठीक है, छोटे पार्टिकल तो क्या करते हैं, ज्यादातर ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, फैला देते हैं. सो दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू सी द ब्लू लाइट मोर whenever small particles are present. ठीक है, द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन इज नॉट विजिबल. जो ट्रू सोल्यूशन होता है, अगर आप उसमें क्या करेंगे, कोई भी लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, लेट इट बी लेजर लाइट, टॉर्च लाइट, अगर आप एक लाइट रे को उस पे से पास आउट करवा देंगे तो आपको उस सोल्यूशन के अंदर पाथ नजर नहीं आएगा, बिकॉज पार्टिकल इतने छोटे हैं जो स्कैटर नहीं करते हैं. ठीक है, अगर पार्टिकल इनफ बड़े हो, दैट हैज टू बी सम साइज ऑफ द पार्टिकल जो कि स्कैटर कर सके. ठीक है, अब अगर ऐसा सोल्यूशन आ जाता है जिसे हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि भाई हम कोलाइडल सोल्यूशन बना दे, पार्टिकल को थोड़ा सा बड़ा कर दे, अगर ऐसा पॉसिबल होता है, देन ओनली यू आर गोइंग टू सी द पाथ ऑफ द लाइट. सो बेसिकली पार्टिकल अगर बहुत ही छोटे हो जाएं, ट्रू सोल्यूशन के जैसे हो जाएं, जैसे ट्रू सोल्यूशन में साइज होता है पार्टिकल्स का, वैसे हो जाएं तो लाइट का पाथ नजर नहीं आएगा. ठीक है, however its path becomes visible through a colloidal solution where the size of the particles is relatively larger. तो पार्टिकल थोड़े से बड़े होने चाहिए ताकि वो ये स्कैटरिंग कर सके, और जब वो स्कैटर करेंगे तभी जाके तुम्हें लाइट का पाथ सॉल्यूशन के अंदर नजर आएगा. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग. ट्रू सॉल्यूशन में नहीं आता है और कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है. रीजन इज ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उनको स्कैटरिंग ही नहीं हो पाता, लाइट को वो स्कैटर नहीं कर पाते, तो उन पे अगर लाइट फॉल करवाई जाएगी तो वो स्कैटर नहीं करेंगे. वहीं पर अगर हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि भाई वो स्कैटरिंग, ये जो पूरा फिनोमेना है उसे शो कर सके, लाइट को स्कैटर कर सके
और लाइट का पाथ हमें विजिबल करवा सके। ठीक है, अब देखिए जो रेले थे उन्होंने एक चीज प्रूव करी। वो क्या चीज प्रूव करी भाई, कि ये जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, मतलब जो इंटेंसिटी स्कैटर की जा रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/λ की पावर 4। लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, सो देखिए रेले प्रूव दैट द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड सनलाइट, मतलब जो लाइट स्कैटर हो चुकी है या फिर हो रही है, तो जो स्कैटर्ड लाइट है, मतलब आफ्टर स्कैटरिंग जो लाइट आ रही है तुम्हारी आंखों तक जो जा रही है लाइट, उसकी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ, फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, जो लाइट की वेवलेंथ है, प्रोवाइडेड द स्कैटरिंग इज स्मॉलर इन साइज देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वहां पर जो साइज है पार्टिकल का वो कैसा होना चाहिए, लेस देन, स्मॉलर देन दिस वेवलेंथ होना चाहिए। मतलब आप जिस लाइट की मतलब जिस वेवलेंथ की लाइट को फॉल करवा रहे हैं, ठीक है, जिस वेवलेंथ की लाइट को फॉल करवा रहे हैं, पार्टिकल के ऊपर लाइट गिर रही है, अगर वो जो लाइट गिर रही है उसका वेवलेंथ जो है पार्टिकल से ज्यादा हो गया, देन ओनली दे आर गोइंग टू बी दिस मच ऑफ फॉर्मूला वैलिड। ऑलराइट, लेकिन अगर ऐसा होता है कि भाई पार्टिकल जो है वो ज्यादा बड़े हो गए हैं, वेवलेंथ से ज्यादा बड़े हो गए हैं, तो ये फिर फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ऑलराइट, ये रेले ने बताया था, ऐसा उन्होंने बताया था। अब मैं आपको बताती हूँ टिंडल इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट है एक इफेक्ट बहुत बढ़िया सा। देखो हमें ये बात पता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, मतलब आपको वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, गैसेस के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत ही अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स मिलेंगे, वाटर वेपर्स मिलेगी। बेसिकली अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स मिलेंगे और बहुत सारे पार्टिकल्स आपको वहाँ मिलेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। पॉल्यूशन भी होता है तो इस मतलब उसके भी पार्टिकल्स हैं, हार्मफुल गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि चिमनीज वगैरह से धुआं निकलता है उसके पार्टिकल्स होते हैं, तो दे आर वेरियस साइजेस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, वी कैन से दैट कि भाई हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है माइन्यूट पार्टिकल्स का, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें होते ही होते हैं और डिफरेंट साइजेस के होते हैं। ठीक है, देखिए ये जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्मोक के पार्टिकल, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, ये सब कुछ हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, भले ही हमें दिखाई नहीं दे बट देयर इज दिस मच ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ देखिए, when a beam of light strikes such fine particle, the path of the beam becomes visible. जब कभी भी लाइट या फिर बीम ऑफ लाइट या फिर रे ऑफ लाइट उन पार्टिकल्स के ऊपर जाके गिरती है, फॉल होती है, तो क्या होता है, वो जो पाथ है या फिर वो जो पार्टिकल है वो विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, दिस पाथ ऑफ लाइट जो भी विजिबल हुई है एक्चुअली में वो किसकी वजह से होते हैं, पार्टिकल्स की वजह से। अब देखिए वो वाली जो लाइट जो उनकी वजह से जो पाथ हमें नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ दोज पार्टिकल्स, जो पाथ हमें नजर आ रहा है वो हमें क्या दिखाता है, एक टिंडल इफेक्ट दिखाता है। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल जिनके ऊपर लाइट फॉल हुई, अब उन पार्टिकल से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट रेज हमारी आंखों में जाएंगी एंड वी आर एबल टू सी द पार्टिकल। ठीक है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल चमकते हुए हमको नजर आते हैं जब कभी भी ऐसा पॉसिबल होता है, लाइक दिस। कैन यू सी द पॉसिबल लाइट रेज, आपको दिखा रहे हैं, बीम दिख रहा है, आपको पाथ दिख रहा है, भाई लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, यू आर एबल टू सी दैट। ठीक है, उसके अलावा आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल इधर उधर उड़ते दिखाई देंगे, ये आपको किसकी वजह से दिखाई देगा, टिंडल इफेक्ट की वजह से दिखाई देगा। बेसिकली पार्टिकल अगर इनफ बड़ा हो तो वो क्या कर सकता है, खुद के ऊपर गिरने वाली लाइट को चारों तरफ पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर कर सकता है। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। अब क्योंकि ये जो स्कैटरिंग हो रही है और कोलॉइडल पार्टिकल की वजह से हो रही है, इसकी वजह से भी हमें क्या मिलने वाला है, टिंडल इफेक्ट मिलने वाला है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। This phenomena is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई बंद अंधेरे कमरे में अगर छोटे से क्रैक से या फिर किसी छोटे से छेद से लाइट एंटर करती है तो उस लाइट की रे आपको दिखाई देती है, साथ ही साथ आपको क्या दिखाई देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल जो उस रे में आपको दिखाई देंगे मूव करते हुए। ये फिनोमेना आपको इस तरीके का ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल्स विजिबल। ये स्कैटरिंग ही ऐसा है जिसकी वजह से हम पार्टिकल दिखाई देते हैं, क्योंकि लाइट रे हमारी आंखों तक पहुंचती हैं आफ्टर बीइंग इंसिडेंटिंग ऑन दैट पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल के ऊपर लाइट गिरती है,
तब जाके वो लाइट पार्टिकल स्कैटर करता है और हमारी आंखों में रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो जाएगी, तभी जाके हमें पार्टिकल दिखेगा. सो वी कैन सी द पार्टिकल बिकॉज ऑफ द दिस रिफ्लेक्शन, जो कि कैसा होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है. एंड दिस प्रोसेस इज बाय नोज एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of dense forest. बहुत ही घना जंगल हो, घने जंगल में सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वहां पर सनलाइट फॉल होती है, एंड whenever they enter through the small holes or small gaps, वहां पर हमें Tyndall effect दिखाई देता है, just like this. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमको दिखाई देता है. So basically this is the Tyndall effect. Here tiny water droplets in the mist स्कैटर लाइट. जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पानी के पार्टिकल, छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो एक्चुअली क्या कर देती है, स्कैटर कर देती हैं. इवन डस्ट पार्टिकल्स भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं जो स्कैटर कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज मेनली नोन एज द टिंडल इफेक्ट. ठीक है, जहाँ पे आपको पाथ नजर आता है, जहाँ पे आपको यू कैन से छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आते हैं. नाउ लेट्स सी कि भाई ये जो फिनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जनरली आपको कहाँ कहाँ नजर आता है. सबसे पहला इसका ऐसे फिनोमेना जो कि आपको नजर आता है बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द ब्लू कलर ऑफ स्काई. सो यू कैन सी द स्काई इज ब्लू, राइट. सो बेसिकली व्हाई द स्काई इज ब्लू, द रीजन इज द स्कैटरिंग. ये फिनोमेना क्योंकि वहां है, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू सी द ब्लू लाइट. ठीक है. When we look at the sky, we receive sunlight scattered by the fine dust particles, air molecules and water vapor molecules present in the atmosphere. जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सनलाइट एंटर होती है तो वो सनलाइट किसके ऊपर गिरती है, आसमान में या फिर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितने भी फाइन डस्ट पार्टिकल है उनके ऊपर जाएगी पहले तो, तभी तो धरती तक पहुंचेगी. सो फर्स्ट उन पे जाती है. जब उन पे जाती है सो व्हाट दे डू, उनके ऊपर गिरने वाली जितनी भी लाइट रेज होती हैं वो आसपास में ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं. एंड स्कैटर होना इज द फर्स्ट थिंग जिसकी वजह से यू कैन सी द ब्लू स्काई. ठीक है. नाउ सी, since blue light which is present in larger proportion than violet light in the sunlight, sunlight में blue light ज़्यादा proportion में होती है than the violet. ठीक है. is scattered about 10 times more than orange red light and the light reaching the eye is mainly blue. so basically सिर्फ उन particle की बदौलत हमें ये नीला आसमान दिखाई देता है. अगर वो particle नहीं होते तो शायद हमें आसमान नीला नहीं दिखाई देता. So basically ये scattering because of those particles हो रही है and those particles scatter most of the, you can see 10 times more वो blue color को scatter करते हैं and that is the reason we see the blue sky, right? Hence the sky appears bluish. If the earth had no atmosphere, अगर हमारे अर्थ के पास कोई एटमोस्फेयर नहीं होता तो हमें ये ब्लू कलर नहीं दिखाई देता. ठीक है. There were no scattered sunlight and sky would have appeared black. एंड डू यू नो दैट कि भाई जो अगर आसमान से लेट इट बी एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं अगर वो अर्थ को देखें तो उनको क्या लगता है कि भाई उनको क्या दिखाई देगा, क्या उनको स्काई ब्लू दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं. देखो, द स्काई डज अपीयर ब्लैक टू द एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस अबव द अर्थ सरफेस बिकॉज उनको जो दिखाई दे रहा है वो स्कैटर्ड लाइट नहीं दिखाई दे रही है. ठीक है. दे आर सीइंग फ्रॉम द स्पेस एंड दैट इज व्हाई उनको जो स्काई है वो ब्लैक ही नजर आती है. सो बेसिकली द रीजन कि भाई हमें हमारा आसमान काला क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि बाहर तो स्पेस है, हमें तो ब्लैक दिखना चाहिए. बट बिकॉज ऑफ दीज पार्टिकल्स इन दी आवर एटमोस्फेयर वी आर गोइंग टू सी द ब्लू कलर ऑफ द स्काई. सो हु इज द कल्प्रिट, द पार्टिकल, द डस्ट पार्टिकल इन दी एटमोस्फेयर, जिनकी वजह से हमें कलर ब्लू दिखाई देता है. ऑलराइट. नाउ लेट्स सी द सेकंड फिनोमेना. वो क्या है? द क्लाउड अपीयर्स व्हाइट. हमें क्लाउड व्हाइट नजर आते हैं. देख सकते हो भाई ये ब्लू स्काई, ये व्हाइट क्लाउड्स, यू कैन सी दैट, यू कैन ऑब्जर्व दैट. सो लेट्स सी व्हाई दिस इज हैपनिंग. The dependence of scattering on 1 upon lambda power 4 is valid only when the scattering particles or molecules are much smaller than the wavelength of light as air molecules. ये जो possibility है कि भाई ये जो scattering हो रही है, incident light जो scatter हो रही है, स्कैटर होने के बाद लाइट की जो इंटेंसिटी है वो 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4 पे डिपेंड होता है, उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ये चीज कब वैलिड है? आई टोल्ड यू, ये तब वैलिड है जब पार्टिकल बहुत छोटे हों. किससे? वेवलेंथ से बहुत छोटे हों. ये तभी पॉसिबल हो सकता है. बट हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है. हमें तो अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स मिलते हैं. सो क्लाउड्स हाउएवर कंटेन वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स दैट आर मच लार्जर देन लैम्डा. वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होते हैं. लाइट की जो वेवलेंथ है उससे काफी ज्यादा उनका साइज होता है. एंड दैट इज द थिंग कि ये चीज वो फॉलो नहीं करते बिकॉज दे आर मच बिगर.
ठीक है, अब वो बड़े हो चुके हैं, सो वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है, सभी कलर्स की लाइट स्कैटर होती है, एंड क्योंकि सभी कलर्स की लाइट स्कैटर होती है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें तो वो लाइट कैसे अपीयर होगी, वाइट अपीयर होगी, क्योंकि सारी लाइट्स कंबाइन हो जाएंगे, सारे कलर्स कंबाइन हो जाएंगे, सो वी आर गोइंग टू सी द वाइट थिंग, एंड दैट इज द रीजन कि हमें जो क्लाउड्स हैं वो वाइट नजर आते हैं। नाउ यू नो द रीजन, है ना, आपको पता है कि भाई क्लाउड में जो जिस चीज का क्लाउड बना होता है वो वहाँ पे क्या होता है, आइस के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे आइस के पार्टिकल्स होते हैं, एंड यू कैन सी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनका साइज लैम्डा से ज्यादा होता है। दैट इज द रीजन कि क्लाउड्स हमें कैसे दिखाई देते हैं, वाइट दिखाई देते हैं, बिकॉज वो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर तो करते हैं, सभी कलर्स की लाइट को स्कैटर करते हैं, सभी कलर्स की, और सारे कलर्स अगर हो रहे हैं तो वो मिक्सअप होके हमें तो वाइट नजर आएंगे। सो दिस इज द रीजन कि हमें क्लाउड्स तो वाइट नजर आते हैं और स्काई हमको ब्लू नजर आता है। सो हु इज द कल्प्रिट हियर, क्लाउड हमको वाइट क्यों नजर आ रहे हैं, द कल्प्रिट इज द आइस पार्टिकल्स एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स बीइंग लार्जर इन साइज एंड लार्जर इन द लैम्डा, लैम्डा से वो बड़े होते हैं, दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू सी द वाइट क्लाउड्स। ऑलराइट, नाउ सी, इसलिए हमको वाइट दिखाई देते हैं। थर्ड थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज एट सनराइज और सनसेट द सन अपीयर्स रेडिश दिखाई देता है। अब भाई यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पर भी ब्लू दिखना चाहिए था, अगर हमको आसमान देखना तो हमको ब्लू दिखना चाहिए था, बट नहीं, हमको तो सनराइज सनसेट में तो रेड दिखाई देता है। रीजन इज स्कैटरिंग। लेट्स सी अब क्या हो रहा है, ठीक है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट द सनराइज और सनसेट। लेट्स सी, at sunrise or sunset the sun is near the horizon and sun rays reach the earth after passing through maximum distance in the atmosphere. So the thing is, यहाँ पर लाइट को ज्यादा एटमोस्फेयर में ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है, वैसे उसको जब दिन चढ़ जाता है दैट इज एट द नून, उसको बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है हमारे एटमोस्फेयर में, बट एट दी सनराइज और सनसेट क्या करना पड़ता है, उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। लेट मी टेल यू हाउ, वो ज्यादा कैसे डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लेट मी टेल यू। अर्थ की सरफेस कैसी होती है, कर्व्ड होती है, ठीक है, लेट इट बी, दिस इज द अर्थ सरफेस, ठीक है, ये है अर्थ सरफेस, और अब जो मैं बना रही हूँ ये डॉटेड है ना, ये क्या है, अर्थ का एटमोस्फेयर, ठीक है, ये है अर्थ का एटमोस्फेयर जो डॉटेड मैंने बनाया है। अब आप यहाँ पे देखिए, जब सन यहाँ पर होता है दैट इज सनराइज के टाइम पे वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, वो हॉराइजन के नियर होगा, राइट। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब सनलाइट आएगी तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, हम तक यहाँ तक वो कैसे पहुंचेगी, कुछ इस तरीके से पहुंचेगी। सो देखो ये एटमॉस्फेयर के अंदर इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो। और जब वो नून पर होता है तो सन अगर नून पर होगा, ठीक है, नून हो जाएगा, तो देखो ये कितना कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है हमारी सरफेस तक पहुंचने के लिए, समझे। तो सनराइज और सनसेट ये दोनों ही कंडीशन में, यहाँ पर और यहाँ पर सन की रेज हैं उनको काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर उनको ज्यादा मिलता है, ठीक है, दैट इज वाई उनको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। ड्यूरिंग दिस पैसेज लाइट इज स्कैटर्ड बाय एयर मॉलिक्यूल्स एंड फाइन पार्टिकल्स। अब क्योंकि वो अगर आ रहे हैं एटमॉस्फेयर में एंटर हो रही है सनलाइट, तो डेफिनेट सी बात है डस्ट पार्टिकल, एयर के मॉलिक्यूल स्कैटर करेंगे लाइट को, तो ठीक है। सिंस स्कैटरिंग म्यू दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलने वाले हैं। 1 upon lambda की पावर 4, most of the blue light and neighboring colored light is scattered out before reaching the observer। हमारी आंखों तक पहुंचने के पहले ही ये जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर हो चुकी होती है, मतलब वो हमारी आंखों तक पहुंचती ही नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली क्यों, क्योंकि यहाँ पे लार्जर डिस्टेंस है। इस टाइम पे नून के टाइम पे हाँ उसको क्या करना पड़ता है, लाइट को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो जो स्कैटरिंग कलर्ड है वो हम तक पहुंच पाता है, मतलब स्कैटर होने के बाद भी ऐसा एक डिस्टेंस है जहां तक वो पहुंच सकता है, जहां तक वो नहीं पहुंच सकता, राइट, दैट इज द मेन थिंग। अब यहाँ पे जब, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई इस तरीके का स्कैटरिंग होता है, लैम्डा की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्कैटरिंग हो रही है, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर स्कैटर्ड आउट हो जाता है, हमारी आंखों तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो हम तक वो नहीं पहुंच पाता, ब्लू कलर हम तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। लेकिन हम तक फिर क्या पहुंचता है, द लाइट रिसीव बाय द ऑब्जर्वर इज प्रीडोमिनेंटली रेड, क्योंकि लार्जर वेवलेंथ होती है रेड की, ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू से कि भाई हम तक वो रेड कलर पहुंच पाता है, पिंकिश कलर पहुंच पाता है, ठीक है। फॉर अ सिमिलर रीजन द सन अपीयर्स ऑरेंज रेड इन द फॉग और मिस्ट, फॉग और मिस्ट में भी यही रीजन है कि भाई हमको वो रेडिश नजर आता है,
रीजन कि भाई ज्यादातर जो लाइट आ रही होती है वो स्कैटर्ड आउट हो जाती है, तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा पहले स्कैटर्ड आउट होता है, हम तक तो पहुंचता ही नहीं है। पहुंचता कौन है? लार्जर वेवलेंथ, एंड व्हाट इज दैट? रेड। दैट इज व्हाई रेड अपीयरेंस हमें मिलती है। अब देखिए नून पर जब दोपहर हो जाती है, 12 बज जाते हैं, तो सिर के बिल्कुल ठीक ऊपर सूरज होता है। So देखो when the sun is overhead, the sun rays travel minimum distance in the atmosphere and there is little scattering. जब minimum distance होता है तो little scattering होती है, तो जो भी scattering होती है वो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है and we see that as the blue, ठीक है, तब हमें जरूर blue नजर आ जाता है। Hence the sun appears almost white, in fact slightly yellowish because some blue light is scattered. So basically उस वक्त आपको जरूर आपको कैसा सन दिखेगा? येलो दिखेगा, ठीक है, स्काई ब्लू दिखेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट कभी कभी वाइट भी दिख जाता है सन। सो बेसिकली नाउ यू नो कि सनराइज सनसेट पे आपको रेड कलर क्यों दिखाई देता है, स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, ये बात आपको पता चल गई है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं स्कैटरिंग का कि क्या सचमुच ऐसा होता है। वैसे तो होता है, हमको पता है, बट लेट्स डू इट्स, एक्सपेरिमेंट भी हम कर ही लेते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं कि भाई सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड कलर हमें दिखता है, तो लेट्स सी कैसे और क्यों। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, व्हाइट लाइट का एक सोर्स यहाँ पे रखा है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, एक कन्वर्जिंग लेंस लिया है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस लिया है। कन्वर्जिंग लेंस अब क्या करेगा, सारे की सारी लाइट रेज जो एस सोर्स से आ रही हैं उनको वो पैरेलल कर देगा। जब वो लेंस से गुजरेंगी तो वो क्या कर देगा, उनको पैरेलल कर देगा। सो नाउ यू सी दीज बीम ऑफ लाइट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। अब देखिए इस लाइट को हमने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट यू कैन से वाटर टैंक में से गुजरने दिया, इसे पास ऑन होने दिया। पास ऑन होने के बाद हमने इसे इस होल से, जिसे हमने सी बोला सर्कुलर होल से भी पास ऑन होने दिया। सो लाइट इज गोइंग आउट, जा रही है वो, ठीक है। और ये जो सरफेस है ये कार्डबोर्ड की सरफेस है, कार्डबोर्ड में से हमने एक होल कर दिया, उसमें से हमने इसे जाने दिया। सो लाइट इज गोइंग आउट। अब क्या हो रहा है, अब हमें इसे क्या करें, शार्प इमेज ऑफ द सर्कुलर होल ऑन अ स्क्रीन एमन। अब हमें इस स्क्रीन एमन पे, ठीक है, ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर इस होल की तस्वीर लेनी है, इमेज लेनी है, ठीक है। इमेज कैसे मिलेगी, एक और लेंस हमने लिया और उस लेंस ने क्या किया, कन्वर्जिंग लेंस है, सो इट कन्वर्जेस द लाइट रे एंड वी गेट अ इमेज हियर। अब हमें क्या मिला, इमेज मिला। ये जो इमेज है वो हमें मिलेगी, डेफिनेट सी बात है। सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हैं, 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन 2 लीटर ऑफ वाटर, क्लियर वाटर में हम लोग मिला देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। Add 1 or 2 ml of concentrated sulfuric acid to the water. So basically हमने दो काम किए हैं, हमने सोडियम थायोसल्फेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को अब इस पानी में मिला दिया है। पहले तो एक क्लियर वाटर था, ठीक है, अब हमने क्या किया है, ये केमिकल्स इसमें मिला दिए हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखते क्या होता है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हमने ऑब्जर्व किया कि माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट इन 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट के अंदर ये जो सल्फर के पार्टिकल्स होते हैं ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, मतलब ये कलेक्ट होके हो जाते हैं और इनका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। 2 to 3 मिनट्स के अंदर हमें ये बात पता है। जैसे ही सल्फर के पार्टिकल्स बनने शुरू हुए, वो प्रेसिपिटेट होने शुरू हुए, हमें क्या नजर आया कि जो ब्लू लाइट है फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ द ग्लास टैंक, ग्लास टैंक के 3 साइड से हमें ब्लू लाइट नजर आई, ठीक है। क्यों, अब स्कैटरिंग होने लगी। स्कैटरिंग होने लगी का मतलब अब क्या हो रहा है, लाइट स्कैटर करेगी क्योंकि पार्टिकल्स का साइज अब बड़ा होते जा रहा है, राइट। प्रेसिपिटेशन से क्या हो रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर एक वो बना देता है पार्टिकल। सो यू आर गोइंग टू गेट दी लार्जर साइज ऑफ दी पार्टिकल्स, ठीक है, तुम्हें लार्जर साइज मिलेगा। इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ्स बाय माइन्यूट कोलाइडल सल्फर पार्टिकल्स। अब हमें ब्लू लाइट क्यों नजर आई, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ है तो वो आपको नजर आ गई, ठीक है, बाय द स्कैटरिंग, छोटे पार्टिकल्स ने उनको स्कैटर किया, दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू सी द ब्लू लाइट। अब देखिए, we observe that the color of the transmitted light from the fourth side of the glass tank facing the circular tank at first is orange red and then bright crimson. उसके बाद हमें वो लाइट मिली स्क्रीन पे, ठीक है, दैट इज द रीजन, क्योंकि अब प्रेसिपिटेशन हो रहा है एंड अब पार्टिकल्स बड़े हो रहे हैं, राइट। सो दे आर गोइंग टू स्कैटर मोर। तो फोर्थ साइड से हमें कैसा नजर आया, रेडिश कलर नजर आया, ठीक है। एंड दिस इज रिलेटेड टू दी रियल फिनोमेना। देखो लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉराइजन, जब वो बड़ी लेयर से, एयर की बड़ी लेयर से पास ऑन होती है, लाइट आती है, सो व्हाट हैपेंस, वो बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर अप करती है हमारी आंखों तक पहुंचने के पहले, ठीक है। लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस
फ्रॉम मून द सन अपीयर्स वाइट, मून से तो हमें जो है दिखाई देगा वाइट, क्यों? क्योंकि देयर इज नो एटमोस्फेयर, सो नो स्कैटरिंग, राइट? तो इट वुड बी लुक एट द वाइट, ठीक है। एज अ लिटिल ऑफ ब्लू एंड वॉयलेट कलर्स आर स्कैटर्ड, तो जब हॉराइजन से आ रही होती है लाइट तो क्या होता है, वॉयलेट ब्लू कलर स्कैटर्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है। नियर द हॉराइजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स, therefore the light that reaches our eyes is of longer wavelength, and that is the main thing कि we are going to get the red color of the sun, ठीक है। ये हमारा important reason है, और we have proved just till now that we are going to get the reddish appearance because of the longer wavelength of the red color, ठीक है। इसी वजह से हमें वो red दिखाई देता है। ऑलराइट, अब हमने ये देख लिया कि भाई एक्सपेरिमेंटली भी ये ट्रू है, स्कैटरिंग हो रही है, रेड कलर नजर आ रहा है, ठीक है, पार्टिकल्स को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। नाउ लेट्स लुक अप टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज द सेकंड फिनोमेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमें ये बात पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमें रिफ्रैक्शन भी पता है क्या होता है, और हमें रिफ्लेक्शन भी पता है क्या होता है। सो बेसिकली देखो क्या होता है, जब कभी भी एक मीडियम में हम लाइट को एंटर करवाएं और वो किसी सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाए तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। एयर में से जा रही थी लाइट, एयर में ही वापस आ रही है टकराने के बाद, सो वी से दैट इज रिफ्लेक्शन। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ऐसा क्या है? सो देखो, लाइट रे को हमने क्या किया, ये एक छोटा सा एक यू कैन से मटीरियल है, एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल है, लाइट रे को यहाँ से हम इस मटीरियल के अंदर एंटर करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, बिकॉज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है लाइट, सो इस सरफेस पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। बट व्हेन इट इज गोइंग फर्दर, जब ये आगे जा रही है तो ये यहाँ पर टकराई, सरफेस था, ये एक ऐसा सरफेस है जिसके बाहर अलग मीडियम है, अंदर अलग मीडियम है, सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज एन इंटरफेस। अब इस सरफेस से टकराने के बाद बाहर जाने की बजाय, मतलब रिफ्रैक्शन शो करने के बजाय, ये लाइट वापस अंदर मुड़ गई, सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड व्हेन दिस टाइप ऑफ थिंग हैपेंस कि लाइट बाहर ही नहीं आती, ये गोज ऑन रिफ्लेक्शन, कई सारे रिफ्लेक्शन होते रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलती, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। द रीजन इज, रीजन यहाँ पे क्या है, तो देखो यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब रिफ्लेक्शन हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम बाहर है, डेंसर मीडियम अंदर है, तो लाइट क्या कर रही है, डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, टकराने के बाद वो रेयर मीडियम में जाने के बजाय वो डेंसर में ही चली गई, ठीक है। सो देयर हैज टू बी अ कंडीशन ओवर देयर, जब लाइट ने क्या किया, रेयर मीडियम में जाने से मना कर दिया और वो वापस से डेंसर में ही चले गए रिफ्लेक्ट होके, दिस इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So see, the phenomenon of reflection when a ray of light traveling from a denser to rarer medium is sent back to same denser medium, उसी denser medium में वापस आ जाती है, provided when it strikes the interface of the denser and the rarer media at an angle greater than the critical angle. This is the condition. Greater than the critical angle में अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा possible होता है, then only you are going to see the total internal reflection. I am telling you how, हो सकता है आप लोग confuse हो गए हो, let me tell you. So I am going to show you how this total internal reflection can occur, ठीक है। So अब देखो हम लोग क्या करते हैं, we are going to make an interface, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, ये सीधा ही है, ठीक है, सभी लोग इसे सीधा माने। अब देखो ये है हमारा एक इंटरफेस, यहाँ पर है रेयरर मीडियम, ठीक है, यहाँ पर है डेंसर मीडियम, ऑलराइट, ये चीज हमें समझ में आई। अब हमने क्या किया, डेंसर से रेयरर में लाइट भेजने की कोशिश की। सो लाइट रे क्या कर रहे हैं, हम एक एंगल पे भेज रहे हैं, नहीं, सबसे पहले हम बिल्कुल स्ट्रेट भेजेंगे ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो देखो, जब हमने बिल्कुल स्ट्रेट में इसको भेजा तो लाइट रे क्या करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, ये बात हमें पता है, ठीक है। व्हेन इट इज गोज नॉर्मल टू द इंटरफेस, सो इट ट्रेवल्स बिल्कुल स्ट्रेट पाथ। अब देखते हैं, अगर हम किसी एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, इस सरफेस से, हम नॉर्मल से बेसिकली, अगर हम किसी एंगल से, लेट इट बी एंगल आई, ठीक है, इंटरनल, ये दैट इज व्हाट कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल से अगर हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, अब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, इट शुड मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
तो ये लाइट रे क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होके चली जाएगी. सो यू आर गोइंग टू गेट एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. ठीक है, अब ऐसा क्या होगा, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं. पहले तो जीरो था एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस पोजीशन, जब ये फर्स्ट केस है हमारा, ठीक है, ये वाला जो है I इक्वल्स टू जीरो था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो. आपने क्या किया, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया. सो इट हैपेंस कि भाई रिफ्रैक्शन हो गया, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई, गिविंग सम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब हम नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा देते हैं. ठीक है, इस तरीके से हम इसे जो है बढ़ा देते हैं, इस तरीके से हम इसे बढ़ा देते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये बिल्कुल इस सरफेस के पैरेलल चली जाए, इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल चली जाए. इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पर यू आर गोइंग टू गेट, यू कैन से दी 90 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो यहाँ पे आपने एक एंगल ऐसा पता कर लिया है जब क्या हो रहा है, ये जो लाइट रे है वो क्या कर रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अलोंग द सरफेस चले गई. ठीक है, ये एंगल कौन सा एंगल हुआ, इसे हम बोलेंगे IC, दैट इज क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल को आप खतरे की घंटी भी बोल सकते हो कि भैया अब जो लाइट रे है वो दूसरे मीडियम में नहीं जाने वाली, अब अगर आपने एंगल बढ़ा दिया तो वो वापस आ जाएगी आप ही के मीडियम में. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए वापस से हम लोग जो है जा रहे हैं. अब इस IC भी से भी बड़ा एंगल अगर आप लेना चाहें, बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप लेना चाहें, सो व्हाट विल हैपन, देखो अब क्या होगा, अगर हमने और भी ज्यादा एंगल यहाँ पे लेने की कोशिश की, यानी ये एंगल जो है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन IC, क्रिटिकल एंगल, खतरे की घंटी से भी बड़ा एंगल अगर हमने लिया, सो इट विल गो बैक इनटू द सेम मीडियम. अब जो है ना वो हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो अब तुम बात समझ में आई कि देखो क्या होता है जब कभी भी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो रखा वो सीधे निकल जाएगी. ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा. अगर आपने कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट को भेजा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मल फिनोमेना, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी. ठीक है, फिर आपने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ाया और बढ़ाकर आप ऐसे एंगल पे पहुंच गए जहां पर जो लाइट रे है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या हो रही है, अलोंग द सरफेस चली गई. ये जो एंगल है दिस इज द क्रिटिकल एंगल. अब यहाँ पे बोल दिया क्रिटिकल का मतलब क्या होता है भाई, खतरे की घंटी. ठीक है, वार्निंग साइन वी कैन से. सो दिस कैन बी टेकन एज द वार्निंग साइन कि अब ये जो लाइट रे है इससे बड़ा एंगल तुमने किया, मतलब इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल अगर तुमने किया तो लाइट रे रेयरर मीडियम में जाने के बजाय दिस विल कम बैक इनटू द सेम मीडियम. सो अगर हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बड़ा कर दिया क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट रे गई एंड इट कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम, वो दूसरे रेयरर मीडियम में गई ही नहीं. दिस इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. समझ में आई ये बात, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन. अगर आप डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट भेज रहे हैं और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सो लाइट विल कम बैक इनटू द डेंसर मीडियम, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये कुछ कंडीशन है जो आपको याद रखनी है. नंबर 1 डेंसर से रेयरर जाना है. नंबर 2 एंगल कितना ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, दैट्स इट. अगर आपको ये दोनों बातें याद है तो मतलब आप समझ चुके हैं क्रिटिकल एंगल, जो ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, सो ये तो रफ फिगर है, हम इसे फेयर की बात करते हैं. सो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग डेंसर एंड रेयर मीडियम इट इज रिफ्रैक्टेड. हमने क्या किया, लाइट रे को डेंसर से रेयर में भेज दिया, सो वो सीधे चले जाएगी. फिर अगर आप किसी एंगल पे भेजोगे तो वो किसी एंगल पे रिफ्रैक्शन करके शो करके चले जाएगी, दूसरे मीडियम में चले जाएगी, रेयर मीडियम में चले जाएगी. एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द इंटरफेस. अब क्या होगा, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हो इस जगह पे, यहाँ पे आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल रहा है 90 डिग्री, और जो रे है वो बिल्कुल पर along the surface of the इंटरफेस हो जाएगा. ठीक है, तो वो उसके अलॉन्ग चली जाएगी. इट विल नॉट गो इनटू द एनी मीडियम. किस एंगल पे, क्रिटिकल एंगल पे. ठीक है,
At a particular angle of incidence, the refracted light ray travels along the interface and the angle of refraction becomes 90 degree. This angle is known as the critical angle. ठीक है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्रैक्टेड जो रे है वो एंगल बना रही है 90 डिग्री, दैट इज मीन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, उसे हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल एंगल बोल देंगे. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. When the angle of incidence becomes greater than the critical angle, there is no refracted light but reflected light जरूर मिलेगी. ठीक है, सो अब क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, डेंसर मीडियम में चली गई है, वो आपको रिफ्रैक्शन में नहीं मिलेगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, एंड दिस इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ऑलराइट, अब इसकी देख लीजिए टू कंडीशंस, दो कंडीशन, छोटी छोटी कंडीशन से आपको पता होना चाहिए. लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. पहली कंडीशन, लाइट को डेंसर से रेयरर में जाना है. ठीक है, वाटर से एयर में जाना है, ग्लास से एयर में जाना है, तो हमेशा डेंसर से रेयरर में जाना है. सेकेंड, आपको पता होना चाहिए कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ज्यादा होना चाहिए किसी क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. जो भी मीडिया आप यूज कर रहे हैं, टू मीडिया आप यूज कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, फॉर दैट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यू शुड बी नोइंग दैट क्रिटिकल एंगल कितना है, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपने लिया तो आपको क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा, अनलेस नहीं मिलेगा. ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ. अब हम नोट कर लेते हैं कुछ बातें जो आपको अदर फैक्ट्स पता होने चाहिए. पहला देखिए, तो ड्यूरिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द होल इंसिडेंट लाइट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. जितना भी इंटेंसिटी था ना लाइट का वो सब वापस आ जाता है डेंसर मीडियम में. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जितनी भी एनर्जी लाइट में थी वो सब वापस आ जाती है इनटू द सेम मीडिया. ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. आप कौन से लाइट को यूज कर रहे हो, कौन से वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हो, इस पे एंगल डिपेंड करता है. हो सकता है रेड लाइट का कुछ और क्रिटिकल एंगल हो, ब्लू लाइट का कोई और क्रिटिकल एंगल हो. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. देखो, क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ऑलराइट, सो आप इसको डिब्बे में बंद कर लेंगे, स्टार मार्क भी कर सकते हैं. ठीक है, क्रिटिकल एंगल किस पे बेस्ड होता है, वेवलेंथ पे बेस्ड होता है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ठीक है, जिस भी वेवलेंथ की लाइट आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा. आगे देखिए, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा क्रिटिकल होगा. इसीलिए हम बोलेंगे कि भाई रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा बिकॉज उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है. ब्लू वॉयलेट कलर के लिए मिनिमम होगा, क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ मिनिमम होता है, इसीलिए. ऑलराइट, अब देखिए, critical angle depends upon the nature of the pair of media. Greater the refractive index, lesser will be the critical angle. तो इस पे inversely proportional होता है. ठीक है, refractive index के inversely proportional होता है critical angle. So यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो आप मीडिया यूज कर रहे हो उसका नेचर क्या है, आप जो मीडियम यूज कर रहे हो उसका नेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा. ऑलराइट, image formed due to total internal reflection is much brighter because total light is reflected back into the same medium and there is no loss of light. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बहुत bright image मिलेगी whenever this total internal reflection is going on. Why so? ऐसा क्यों होने वाला है? Because as you can see here कि यहाँ पर आपको जितनी भी लाइट इंटेंसिटी आपने भेजी थी वो सारी की सारी वापस आ गई डेंसर मीडियम में. सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एनर्जी लॉस, कोई एनर्जी ही लॉस नहीं हुई. वो जो एब्जॉर्प्शन होता था वो ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. सॉरी, आपको जितनी लाइट इंटेंसिटी या लाइट की आपने भेजी थी सब वापस आ गई. सो देयर विल बी नो लॉस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड दैट इज द रीजन आपको बहुत ही ब्राइट इमेजेस मिलती हैं व्हेनेवर यू टॉकिंग अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, कुछ ऐसे फिनोमेना जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड हैं, जैसे कि वर्किंग ऑन पोरोप्रिज्म, स्पार्किंग और ब्रिलियंस ऑफ अ डायमंड. डायमंड में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तभी तो आपको हमेशा चमकता चमकता दिखाई देता है. शाइनिंग ऑफ एयर बबल एंड वाटर, मिराज जो होता है, मिराज भी होता है. ठीक है, ऑप्टिक पाइप और ऑप्टिकल फाइबर्स. ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है, लाइट जो है उनके अंदर 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 ट्रैवल करते 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 दूसरे एंड तक पहुंच जाती है. ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहां पर पॉसिबल होता है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेनबो, द ब्यूटीफुल कंसेप्ट
क्योंकि सभी को रेनबो को देख के बहुत खुशी होती है। रेनबो क्योंकि कलर्स से बना होता है एंड एवरीबॉडी लव कलर्स एंड दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज लव्ड रेनबो। बट आपको ये रेनबो की कुछ खासियत पता होनी चाहिए। जब आपने रेनबो कभी नोटिस किया हो तो क्या आपने दो रेनबो नोटिस किए एक साथ? क्योंकि सचमुच में दो रेनबोज होते हैं, एक सीधा एक उल्टा। लेट मी टेल यू हाउ इज दैट। आप इस पिक्चर को देख के समझ जाओगे। एक जो आपको बिल्कुल ब्राइट सा दिख रहा है ना रेनबो, दैट इज द फर्स्ट रेनबो नोन एज द प्राइमरी रेनबो। लेकिन ऊपर आपको दिख रहा है ये वाला जो रेनबो दिख रहा है दैट इज सो मच डिम, ठीक है, वो ब्राइट नहीं है, वो डिम है, छोटा छोटा सा है। सो यू कैन से दैट ये वाला जो है वो सेकेंडरी रेनबो है एंड डू यू नो दैट इट इज इन्वर्टेड। आप कलर्स देख सकते हो, देखो इसमें यहाँ पे ऊपर आपको रेड कलर दिख रहा है, नीचे आपको वायलेट कलर दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ देखो नीचे रेड कलर है, ऊपर वायलेट कलर है। नाउ कैन यू सी दीज टू प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रेनबोज आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी ये कैसा है, क्यों है भी कि नहीं है। लेट्स डू दैट। When the sun shines upon falling raindrops, an observer with his back towards the sun sees concentric arcs of spectral colors hanging in the sky. So basically ये है proper definition of a rainbow. तुम रेनबो को सिर्फ बैंड ऑफ कलर्स नहीं बोल सकते, ठीक है। क्या होता है, तुम्हारे सामने बारिश हो रही है, सन इज बिहाइंड योर बैक, ठीक है। अगर सन तुम्हारे पीछे है देन ओनली यू आर एबल टू सी द रेनबो, ठीक है, तभी आपको रेनबो पॉसिबल होगा दिखना। नाउ सी these colored arcs which have their common center on the line joining the sun and the observer are called the rainbow, ठीक है। so that is the main difference between the rainbow, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सर्कुलर अलग अलग कलर्स के आर्क्स दिखाई देते हैं। सो रेनबो इज जस्ट एन आर्क विच इज मेड अप ऑफ दी 7 कलर्स। और आपको ऐसा लगेगा जैसे हैंगिंग इन द स्काई, दैट मीन दीज कलर्स आर हैंग्ड इन द स्काई, यू आर गोइंग टू सी दैट, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट मोर। ज्यादातर आपको दो रेनबोज दिखाई देंगे, ठीक है, वन अबव दी अदर, ठीक है, वन अबव दी अदर। सो यू आर गोइंग टू सी लोअर वन को हम प्राइमरी बोलेंगे, हायर वन को हम सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे वाला जो रेनबो है वो कैसा है, ये वाला जो रेनबो है दिस इज प्राइमरी रेनबो, जो कि काफी ब्राइट नजर आ रहा है और नीचे नजर आ रहा है। दिस इज सेकेंडरी, जो कि आपको ऊपर नजर आ रहा है और काफी डल है। ऑलराइट, यू आर गोइंग टू सी दैट द रेनबो इज ब्राइटर, प्राइमरी रेनबो इज ब्राइटर, नैरोवर, हैविंग इट्स इनर एज वॉयलेट, आउटर एज रेड। बाहर का एज जो है वो आपको रेड दिखाई दे रहा है, इनर जो इसका एज है वो कैसा है, वॉयलेट है। वहीं पर सेकेंडरी रेनबो जो है विच इज कंपैरेटिवली फेंटर, डल है, डिम है, यू कैन से, हैव रिवर्स ऑर्डर ऑफ द कलर्स, उसमें उल्टे कलर्स होते हैं। नीचे आपको रेनबो रेड दिख रहा है, ऊपर आपको वॉयलेट दिख रहा है, तो आपको उल्टे कलर्स नजर आते हैं। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। सो देखो रेनबोज आर फॉर्म्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सन रेज इन द रेन ड्रॉप्स, ठीक है। जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उसमें जब सन की सनलाइट गिरती है डिस्पर्जन होता है विच एक्ट एज अ प्रिज्म, दैट ड्रॉप एक्ट एज अ प्रिज्म, और वो तब क्या करती है, रेनबो फॉर्म करती है। सो बेसिकली अब आप देख सकते हैं द प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन सन रेज आफ्टर सफरिंग वन इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द रेन ड्रॉप्स emerge at minimum deviation and enters the observer's eye। देखो नीचे आपको दिखाई दे रहा है प्राइमरी रेनबो, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में आप देख सकते हैं वन इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। तो देखो सन रेज आती हैं, रेन ड्रॉप में अंदर फॉल हुई, उनमें रिफ्रैक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्रैक्शन हुआ, यहीं पर डिस्पर्जन हो जाता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट, अब ये जो लाइट रेज है वो ऑब्जर्वर की आंखों में जा रही है, ठीक है। इसी तरह आप इसमें भी देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, एक से आपको वॉयलेट जो है रेज मिल रही हैं, ठीक है, दैट इज अप टू दी 40 डिग्री। वहीं पर आप रेड लाइट देख सकते हो, रेड लाइट आपको मिल रही है कितने पे, 42 डिग्रीज पे मिल रही है, ठीक है। इस फिगर में आप देखिए P1 P2 आर द टू रेन ड्रॉप्स, ये P1 P2 दो रेन ड्रॉप्स हैं जो प्राइमरी रेनबो फॉर्म कर रही हैं। E इज द ऑब्जर्वर्स आई एंड S इज द सन, ठीक है। यहाँ पर जो है सन एंड यू कैन सी दिस इज द ऑब्जर्वर्स आईज, ठीक है, जहां पर हमें कलर बनते दिखाई दे रहे हैं। द सन रेज फॉल ऑन द रेन ड्रॉप्स पैरेलल टू द SE। सो जो भी सन रेज आ रही हैं जो इन ड्रॉप्स पे फॉल हो रही हैं ये इस SE के पैरेलल है। ऑलराइट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ पैरेलल सनबीम, तुम्हें तो मिलेगा ही, डेफिनेट सी बात है। अब देखिए
If the rays are deviated and dispersed by the drops so as to arrive at the observer would receive intense light in those direction in which the rays suffer minimum deviation. So basically क्या होता है, जब कभी भी सनलाइट रेज इन पर गिरेंगी, यू कैन से ड्रॉप्स पर गिरेंगी, तो आपको इंटेंस लाइट मिलेगी. वाई सो, ये इंटेंस लाइट क्यों मिलेगी? बिकॉज आपको मिनिमम यहाँ पर डेविएशन मिलेगा व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दी यू कैन से प्राइमरी वन, क्योंकि प्राइमरी वन में यू कैन सी द मिनिमम डेविएशन 40 डिग्री 42 डिग्री ओनली, राइट. वॉयलेट कलर का आपको 40 डिग्री डेविएशन मिलेगा एंड 42 डिग्री इज फॉर दी रेड कलर. ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो रेड कलर है वो कैसा होता है, हमें ऊपर मिलता है, राइट, विबग्योर नीचे से ऊपर लिखा जाता है. That is the reason. It can be shown that we would or he would observer would receive red light जो कि कितने एंगल पे मिलेगा, 42 डिग्री पे, और intense violet light आपको मिलेगा 40 डिग्री पे. ठीक है, जो कि किससे बन रहा है, SE यानी ऑब्जर्वर और सन को मैच करती हुई लाइन पे हमको ऐसे एंगल्स मिल रहे हैं. सो बेसिकली दैट इज हाउ प्राइमरी जो रेनबो है वो फॉर्म होता है. The drops sending the intense red and violet light to the observer lie on the concentric circles. ये सब के सब देखो concentric circles पे डिपेंड करते हैं, राइट. ये जो सर्कल्स बन रहे हैं उन सभी पे, concentric मतलब सबका सेंटर एक है, राइट, सभी का सेंटर्स एक है सारे सर्कल्स का. Those are known as the concentric circles. ठीक है, तो यहाँ पर आपको concentric circles में मिल रही हैं, और यहाँ पे जनरली आपको दो यू कैन से मिनिमम डेविएशंस आपको मिलते हैं, 42 डिग्री एंड 40 डिग्री. 40 डिग्री आपको किसके लिए मिल रहा है, वॉयलेट कलर के लिए, एंड 42 इज फॉर दी रेड कलर. अब यहाँ पे देखिए, thus the observer sees concentric colored arcs. अब इसी वजह से हमें वो सर्कुलर आर्क नजर आते हैं, ठीक है, वो कर्व्ड होते हैं जो कि कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह बिहेव करते हैं. among which the innermost is violet, outermost is red. इसी वजह से ऊपर हमें रेड नजर आता है और नीचे हमें वॉयलेट नजर आता है, क्योंकि उनका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो रेड में सबसे कम होता है और हमें वॉयलेट में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, राइट. दिस द इंटरमीडिएट कलर्स लाई इन बिटवीन. सो ये जो रेनबो बनेगा जिसमें जो डेविएशंस होंगे वो काफी कम होंगे, एंगल्स कम होंगे, दिस इज द प्राइमरी रेनबो. सेम इसी फैक्टर में सेकेंडरी रेनबोज भी बनते हैं, लेकिन वहां पर एक इंटरनल रिफ्लेक्शन की जगह पर दो इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं. सो सेकेंडरी रेनबोज में देखते हैं. सेकेंडरी रेनबो में आप यहाँ देखिए S1 एंड S2 आर द टू ड्रॉप्स जो कि सेकेंडरी रेनबो फॉर्म कर रही हैं. यहाँ पर भी आपको सर्कुलर आर्क नजर आएगा एंड देयर आर द टू यू कैन से रिफ्रैक्शंस हियर. यहाँ पे टू रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस हमें देखने मिल रहे हैं. The secondary fainter rainbow is formed by the sun rays undergoing two internal reflections in the raindrop. सबसे important चीज, इसी वजह से तो वो secondary बन रहे हैं. And emerging at minimum deviation as occurring in the drop S1 and S2. S1 S2 में आपको जिस तरीके से ड्रॉप्स के अंदर टू मिनिमम डेविएशन इंटरनल रिफ्लेक्शंस मिल रहे हैं, दैट इज द रीजन कि भाई ये जो एंगल्स बना रहे हैं दीज आर ग्रेटर 50 एंड 53. 53 पे आपको रेड जो है वॉयलेट नजर आ रहा है एंड 50 पे आपको रेड नजर आ रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि अब आपको वॉयलेट ऊपर नजर आ रहा है एंड रेड नीचे नजर आ रहा है. यू कैन टेक दैट एज एन इन्वर्टेड प्रिज्म. ठीक है, the semi vertical angles for this bow are 50 degree for the red and 53 for the violet. अब क्योंकि ज्यादा एंगल है वॉयलेट का तो वही ऊपर दिखेगा, एंड दैट्स हाउ यहाँ पर जो सेकेंडरी रेनबो होते हैं उसमें कलर्स उल्टे हो जाते हैं. ठीक है, वॉयलेट ऊपर हो जाता है, सेकेंडरी नीचे हो जाता है. सो दैट्स हाउ ऑल दी रेनबो फॉर्मेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, राइट. दैट इज द मेन थिंग जो कि आपको अब पता होना चाहिए. So that's how we have discussed all the things, that is the total internal reflection, scattering, the various phenomena or the things you can see about in the atmosphere. और हमने सीखा rainbow, right? Next class में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, spherical lenses. So make sure that you stay there. Alright, so I'm going to end the lecture here. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.